ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੋਨੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਨੰਨੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਖਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੋਨੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਗੇਟ ਦੀ ਗਾੜੀ ਮੋਨੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਜਨ ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਫਲਾਣ ਢੀਂਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੁੱਪੜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਾਲ ਦੁੱਪੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਇਹਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਨੂ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਲਵਲੀ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਲਵਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਨੰਨੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਸੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੇ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 10:51 ਜੇ ਹੋਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਆ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ? ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ? ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ CP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਜੇ 20-25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੈ ਦਰਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਧੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਇਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ CP ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਡਲਹੌਜੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਔਰ ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਮਰੇ ਆ ਉਹ ਉਤਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰਵਾਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲਾਗੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ DVR ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਨੂ ਮਹਾਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ 26 ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 4 ਵੋਟ ਪਏ ਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ? ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੀਏ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਣ ਡੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾਣ ਡੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੋਨੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਵਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਸੋਨੂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਢੀਮਣਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ। 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜੀ। 11:30। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। तो ये घर है लवली का जी, हाँ, प्रीतम ढाबा के मालिक का, और रात को गोलियां चलाने का आरोप इन्हीं पे है। फिलहाल हम इनके घर पे आए हैं और इनके घर के परिवार ने ऊपर जैसा हमें बताया कि वो घर में नहीं है, कैमरे के आगे आने से उन्होंने मना कर दिया। फिलहाल हम फ़ोन पे उनसे बात करेंगे। हम आपको बताते हैं रात को दहशत कैसे फैली। तो बात प्रधानगी पद को लेकर हुई, ऊंचा रसूख और हथियार जेब में हो, 4 पैसे हो तो गोलियां चल ही जाती हैं, ऐसा मोहल्ले वालों का कहना है। तो कुल मिला के जिस तरह इस इलाके में रात को गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ, गोलियां चली और सीधी गोलियां, अब केवल एक प्रधानगी पद के लिए पूरे इलाके में सन्नाटा, पूरे इलाके में खौफ फैल गया। और उसकी वजह क्या थी, वजह भी हम बताते हैं। हम आपको कहानी बताते हैं और सिलसिलेवार कहानी पर बताते हैं। वजह ये है, ये बोर्ड देख सकते हैं आप, गुरु नानक वेलफेयर कमेटी, तो इसके प्रधान हुआ करते थे पहले ये, लेकिन कुल 32 घर हैं इस कॉलोनी में, और 32 घरों में से जब 28 लोगों ने इनको प्रधानगी मना कर दी, तो मोनू महाजन को प्रधानगी दे दी गई। कमलजीत सिंह खैरा आप देख सकते हैं, मोनू महाजन को प्रधानगी दे दी गई। उसके बाद में इनको लगा कि इनकी मोहल्ले में जो है इज्जत वो कम हो गई है, और इसके बाद में इन्होंने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पुलिस में शिकायत की, लेकिन क्लीन चिट बाद में मिल गई। यही रंजिश है इनकी। और मैं आपको बता दूं, रेलवे स्टेशन के सामने इनका प्रीतम ढाबा है, और ढाबे के बलबूते पे अच्छी रसूख है इनकी, और अच्छे लोगों से जान पहचान है। और सबसे बड़ी बात कि हथियार है, पैसा है, ऊंची रसूख है, तो गोलियां चल ही जाती हैं। देखना है, पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी जा रही है, देखना है इस बारे में क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात,
इस इलाके में जो भी लोग थे वो रात को सो नहीं पाए, इतनी दहशत फैला दी गई। और कुल मिला के गोलियां चलाना, हथियार रखना हर आदमी को अपनी सुरक्षा के लिए रखा जाता है, लेकिन दबंगई गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। तो जिस तरह लवली, देविंदर सिंह उर्फ लवली, तो लवली ने ये काम किया है, मैं समझता हूँ जांच होनी चाहिए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि गोलियां चलाना और मोहल्ले में गोलियां चलाना और इस कदर गुंडागर्दी करना किसी के लिए शोभा नहीं देता। और कानून सबके लिए बराबर है। कानून क्या कहता है यहाँ के पुलिस कमिश्नर जाने। और लवली यानी कि देविंदर सिंह उर्फ लवली प्रीतम ढाबा के ये मालिक हैं, और ऊंचा रसूख और ऊंचे रुतबे के अलावा इनके पास लाइसेंसी हथियार हैं या नहीं हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर इन परिवार के खिलाफ फतवा जारी किया है। आखिर अब सबसे बड़ी बात है कि दहशत के इस माहौल में पुलिस क्या कदम उठाती है। तो हम उनका पक्ष जानने उनके घर पहुंचे, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आए, बताया गया घर पे नहीं है। हम उनसे फ़ोन पे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दहशत के वो पल भी हम आपको दिखाएंगे जो हमने रात को अपने कैमरे में कैद किए। तो आप बने रहे लाइव भारत पर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, मैं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी खबर को लेकर जो खबर कल रात को हम तक मिली और लाइव भारत तक पहुंची, और उस खबर में ये था कि गोली चली है। तो गोली चली है, गोली चलने की जो हमें जानकारी मिली थी वो मिली थी कि बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में, और यहाँ पे गुरु नानक देव जी के नाम पे एक बसाई नगरी है, और गुरु नानक नगरी यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस पे आरोप लगा था वो बहुत लवली हैं। तो लवली हैं, और हम बात करते हैं उनकी कि आखिर उन्होंने गोली चलाई है न चलाई, लेकिन मोहल्लों वालों ने बयान भी दिया है और कमिश्नर को FIR के लिए भी लिखा है। तो हम बात करते हैं दूसरे पक्ष की। तो बताइए सर, लवली जी, आप इतने क्रोधित हो गए कि आपने कल रात को गोली चलाई? जय हिंद, जय भारत जी, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक गुरु रामदास की नगरी में रहने वाला बहुत ही ईमानदार और ऐसे लड़ाई झगड़े वाला शख्स नहीं हूँ। दूसरी बात ये है, रात को इन्होंने मेरे पे ये ब्लेम लगाया है, और इनको ये मालूम भी है भी मैं एक ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ 4 महीने से। रात को उन्होंने मेरे पे झूठा ब्लेम करके वो इसलिए लगाया इन्होंने, मैंने इन पे ऑलरेडी आज से 1 महीना पहले इन पे FIR दर्ज हुई थी, जो मेरे को इन्होंने झगड़ा किया था। और ये लगातार मेरे पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे राजीनामा डालने के लिए, मगर मैंने नहीं किया। और कल के दिन इन्होंने फिर मेरे के घर में आके मेरी वाइफ को धक्का मारा, और उस मेरे घर के बाहर आके शरेआम गाली निकाली, जिसकी CC वीडियो मेरे पास है। इन्होंने मेरे को धमकियाँ दी, बहुत गंदी गाली निकाली, और जान से मारने देने की धमकी दी। जब मैंने इसकी कार्रवाई दोबारा पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस ने मेरे को आश्वासन दिया भी इस पर कार्रवाई होगी। इनको पता चला तो ये रात को जब मैं सोया हुआ था, इनको रात को इन्होंने पता नहीं क्या झूठी कंप्लेंट दे दी भी लवली रात को गोलियां चला रहा है जी घर पे ऊपर में जाके। तो मैं प्रशासन से यही बेनती करना चाहता हूँ भी ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, इन्होंने जब रात को रिपोर्ट दी है तो पुलिस वाले मेरे घर में आए, उन्होंने देखा भी आपके पास वेपन है। मैं बोला हाँ ये वेपन है, एक मेरा वेपन जमा पड़ा है और दूसरा मेरे पास है 12 बोर है, बंदूक है। उसकी उन्होंने सब इंस्पेक्शन किया, उन्होंने इसके बात को स्पष्ट किया भी इसमें कोई फायर नहीं हुआ है, और ये मेरा वेपन जो है सिविल लाइन में फोरेंसिक लैब के लिए चला भी गया है। उसकी जो रिपोर्ट है वो पुलिस ने दी है भी इसमें कोई फायर नहीं हुआ है। ये बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद ये मेरे पे जान के झूठा कोई कार्रवाई करवा के या ज़बरदस्ती मेरे से राजीनामा करने के लिए ये सब साजिशें कर रहे हैं। और मेन बात है, जो मेन एक्सक्यूज़ तो हैं सब, दूसरा महाजन परिवार है जो सतीश महाजन और मोनू महाजन है, इनसे हमने पैसे लेने हैं मोनू महाजन से। और जब मैंने पैसे की इसको बोला भी आज कोरोना वायरस है, हमें आज पैसे की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरे पैसे दे दो, इन्होंने मेरे को ये बोला भी हम तुम्हारे पैसे दे ही देने हैं। तो कहते मैं कह रहा मैं आपका चेक लगा दूंगा। तो इन्होंने इस पर मेरे पे झगड़ा किया। उस बात पे मैंने इन पर FIR करवाई और सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज है 147 नंबर सिविल लाइन। जब इन पे FIR दर्ज होगी तो ये दोबारा मेरे पे झगड़ा करने की कोशिश की कल दोपहर में, जिसकी CCTV मैंने रिपोर्टर साहब को दे दी है, वो मोबाइल फुटेज है जिसमें ये सरेआम मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं प्रशासन से एक और बेनती करना चाहता हूँ, अगर इस पर कोई कार्रवाई होती है या मेरे पे कोई जानी हमला होता है या मेरे परिवार पे कोई हमला होता है, इसके जिम्मेवारी सीधा ये परिवार होंगे जिनकी एक्सक्यूज़ है, जिन पे मैंने दिखा दी है, जिन पे पर्चा हुआ है। अच्छा, लेन देन तो एक लोगों से हो सकता है, आपके खिलाफ मोहल्ले के काफ़ी लोग हैं जो ऐसे आपके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, तो सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये जो 7 बंदे हैं ना जी, ये दो तो मतलब बाप और बेटे हैं, और 3 एक परिवार के हैं। एक से पैसे लेने हैं और दूसरे उसके सपोर्टर हैं, सिर्फ उसके सपोर्टर हैं। तो
पुलिस तो जांच कर ही सकती है। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस प्रशासन हमारा पूरा दे रहा है जी। पुलिस तो को फिर जो झगड़ा किस बात का? जब सबसे बड़ी बात है झगड़ा किस बात का, जब पुलिस ने जो हथियार इनको गोली चलाने का आरोप है, तो जब वो बंदूक ले गई है और फोरेंसिक लैब ने कह चुकी है कि गोली नहीं चली है, तो फिर आखिर ऐसे में गोली चलाने का आरोप भी जब साबित नहीं होता, यहीं से जब साबित ही नहीं होता, फोरेंसिक लैब कह देती है, तो फिर आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। नहीं सर, गोली चली नहीं है तो मामला कैसे दर्ज होगा? तो फिर ये लोग जो गए हैं कमिश्नर के पास, ये लोग झूठे हैं। बिल्कुल झूठा जी। रात को जो सब इंस्पेक्टर साहब और 2 एसआई साहब आए थे, उन्होंने भी मेरे सारे वेपन देखे, उन्होंने देखा उसमें कोई उसमें स्मोक नहीं थी, उन्होंने सूंघ के देखे हैं, उसमें कुछ भी गंदा नहीं था, सब बिल्कुल साफ थे वेपन। और फिर भी वो कहते फोरेंसिक लैब लेन देन का क्या मामला? आपके पास चेक पड़े हुए हैं? आपने मेरे पास जैसा चेक थे, मैंने वो कोर्ट में लगा दिए। कल पिछले हफ्ते उनको नोटिस आया, उस बात से ये ज़्यादा भड़के हुए हैं। भी इनको इनके 138 की कार्रवाई होगी, इस बात से ये भड़के हुए हैं आज भी। अच्छा, मान लो अगर आप सच्चे हैं और आप साबित कर देते हैं, जैसे फोरेंसिक लैब साबित कर दिया पहले ही आपने, तो जब गोली चली नहीं और गोली जब आपने चलाई नहीं, तो झूठा गुमराह करने का मामला क्या पुलिस इन पे दर्ज कर सकती है? ऐसा आप हाई कोर्ट जाएंगे? मैं बिल्कुल पुलिस प्रशासन पे विश्वास करता हूँ। मेरे जो मैं जितना पुलिस प्रशासन पे विश्वास है, मेरे को जो हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुलिस ने सब रात को सब देख के गए हैं, सब समझ के गए हैं। पुलिस कार्रवाई करेगी, ये मेरे को टोटल विश्वास है मेरा पुलिस। पैसों का लेन देन क्या है? पैसों का लेन देन, इनके दुकान का कोई झगड़ा था, तो उस समय उसकी लोड ज़रूरत थी, मेरे से पैसे ले गया। कोई ब्याज नहीं, कुछ नहीं, वैसे पैसे ले गया। बोले थे थोड़ा बहुत दे दूंगा। मैंने उसको दे, आप ले लो पैसे, मगर मैं आपके भाई हो, मेरे गवांढी हो, मेरे साथ में रहते हो, आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मेरी मदद के लिए पैसे ले रहा हूँ। और ये मदद का मेरे को ये आज इन्होंने सिला दी है। अच्छा, ये इसके जो पैसों का लेन देन वाला मामला है, आपने जब चेक लगा दिया, तो कैश लेन देन का मामला 2 पार्टियों के बीच में नजर आ जाता है? बिल्कुल जी, आता है जी, आता है। बिल्कुल। तो पुलिस को नजर नहीं आता कि एक ही इन्हीं दोनों आपस में क्यों लड़ते हैं? ऐसा पुलिस नहीं सोचती? पुलिस सोचेगी जी सर, इनके मैं इसीलिए तो मैं आज आपको बुलाया है भी, ये मेरे को इंसाफ दिलाया जाए, इन पे एक पर्चा और दर्ज किया जाए इसके लिए। नहीं, सबसे बड़ी बात है, हमने इस मामले में जब इनसे संपर्क किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और सबसे बड़ी बात, सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है। अगर बात करें गोली चलने की, तो अगर फोरेंसिक लैब बता देती है गोली नहीं चली, तो या तो इनके पास नाजायज़ हथियार होगा। अगर वो नाजायज़ हथियार है क्या? जब गोली उससे नहीं चली, मोहल्ला के लोग कह रहे हैं गोली चली है, तो वो जो लोग कह रहे हैं गोली चली है, और आपकी वो फोरेंसिक लैब कह रहे हैं नहीं चली है, तो और नाजायज़ हथियार है आपके पास क्या? मोहल्ले में जो लोग बोल रहे हैं ना, मोहल्ले में जो लोग बोल रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन पे 7 बंदों पे पर्चा दर्ज हुआ है। और बाकी मोहल्ले वाले जो है साथ में, इस रात को उन्होंने इंटरव्यू करके गए हैं, पुलिस वाले भी पूछ के गए हैं, कि उनका बयान भी लेके गए हैं कि यहाँ कोई गोली चलेगी, आवाज़ भी कोई आएगी, तो ज़रूरत भी है। उन्होंने सब ने बोला यहाँ कोई गोली नहीं चली है। और इस बात की स्पष्टीकरण हमारे बाहर बिल्कुल चौक में पुलिस का नाका रहता है, वो भी कह रहे थे भी हमें कोई गोली की ऐसे कोई भी कुछ आवाज़ नहीं आई। जब मैं ये बोल रहा हूँ, जो दोपहर में मेरे घर में आके ये बोल रहे हैं या झगड़ रहे हैं, तब हमने कोई झगड़ा नहीं किया, तब हमने कोई फायर नहीं किया। तो रात को हम पागल थोड़ी, रात को 10:30 बजे 11 बजे फायर करेंगे। कुल मिलाकर हम आप बता दें कि इन्होंने हमें एक वीडियो फुटेज दी है। वीडियो फुटेज में कुछ लोग कुछ वहाँ पे बाहर गालियाँ देते हुए, बाहर निकल ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहना है इनका कि इन्होंने अपनी वीडियो वहाँ से बनाई है। जिस तरह से हालात बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं साजिशें इस गोली चलने के पीछे कुछ ना कुछ तो है। अब जब गोली चलाने वाला कहता है गोली मैंने नहीं चलाई, मोहल्ले वालों ने सुनी, तो ये कैसी गोली? ऐसी गोली होती है जिसकी आवाज़ मोहल्ले वाले सुने और कोई ना सुने, या 7 लोग सुने बाकी ना सुने? ऐसी कोई गोली होती है? ऐसी होती होगी, मगर मेरे आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा वेपन है, गोली की आवाज़ तो बगैर होती कोई नहीं है। नहीं तो 7 लोगों को सुने, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया? मोहल्ला ये वही है जी, वो 7 बंदे, बार आपको बेनती कर रहा हूँ, ये 7 लोग वही हैं जिन पे FIR दर्ज है। घर कितने घर है टोटल? यहाँ 28 घर हैं। 28 घर है? हाँ जी। तो आप अगर 28 घरों में 28 लोगों से पूछ लिया जाए, हाँ पूछ लो, आप पूछ लो, तो वो सच बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। झूठ उनको क्या जरूरत है झूठ बोलेंगे? अच्छा, तो हर घर से पूछ लिया जाए कि गोली चली या नहीं? बिल्कुल पूछ ले। तो हम पूछ लेते हैं सबसे, मगर ये घर वही हो जो जिसमें पर्चा नहीं दर्ज हुआ, जिसमें पर्चा नहीं। अब वो 7 घर हमें बता दे, बाकी घरों को हम पूछ लेते हैं। आप पूछ लो बिल्कुल। तो अगर कोई कहता है कि गोली चली है, तो हो ही नहीं सकता। तो ये इनका कॉन्फिडेंस है या फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट, दोनों कहती है कि गोली इन्होंने नहीं चली और ना ही चलाई है, ये जो इन्होंने अब तक प्रमाण दिया। कुल मिला के ऐसी कौन सी गोली जो 7 लोग सुनते हैं? ऐसी गोली कौन सी है जो एक ही परिवार के 7 लोग सुनते हैं? और जो गोली चलाता है उनसे उनकी रंजिश भी है। तो गोली चलाने वाला जो बंदा है उनसे उनकी रंजिश है, और 7 लोग हैं या 7 परिवार हैं, तो बाकी मोहल्ला जिम्मेदार है ना गोली चली या नहीं, क्योंकि मोहल्ले में तो आवाज़ गोली की आती ही है।
फिलहाल हम ये भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात पुख्ता बात करते हैं आपसे। और जी 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 क्या मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ, ऐसे अनसरों को बख्शना ना बख्शो। ये हमारे लिए भी आज खतरे का घर है, प्रशासन के लिए भी खतरे का घर है और पुलिस के लिए भी है। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, ऐसे झूठे लोगों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, ये पहले वाले FIR के स्टेटस क्या है? उसका भी इन पे FIR दर्ज हुई है, इनकी जमानत नहीं है, उनकी पुलिस जो थाने में होती है वो होगा, थाने की जमानत हुई है, कोर्ट में इनकी जमानत नहीं है अभी तक। शामिल तफ्तीश हुए हैं, मतलब शामिल तफ्तीश हुए। तो दबंग है क्या ये लोग? सर जैसे ये काम कर रहे हैं है तो दबंगी है। सरेआम बदमाशी करेगा तो आम बंदा तो सरेआम बदमाशी करता नहीं है। मैंने आपको अभी वीडियो एक सुनाई भी है, दिखाई भी है। जो ऐसे बदमाश लोग होते हैं वही ऐसे कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते ऐसे काम। नहीं, बदमाश का मतलब क्या? सर जब किसी के घर में आके पढ़ोगे, किसी की जनानी को हाथ उठाओगे, बाहर आके गाली निकालोगे माँ बहन की, तो दबंगी है और क्या है। तो बदमाशी आपने ये रिपोर्ट कितने बजे दर्ज करवाई? कल मैंने ये कितने बजे 3 बजे लिख के दी है। 3 बजे लिख के दी? हाँ जी, उसमें कोई कार्रवाई हुई? हाँ जी, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अच्छा, 3 बजे आपने दरखास्त लिख के दी, उसमें कार्रवाई शुरू हुई, और रात को कितने बजे आप गोली चलाते हो? मैंने तो गोली चलाई नहीं था, गोली उनके मुताबिक मैंने इन्होंने रात को बोला भी, रात को मैं जब सो रहा था जी जी, तो मेरे को बाहर पहले तो पता नहीं चला क्या है, तो बाद में जब पता चला दरवाज़ा खड़का है, बाहर पुलिस आई। मैं क्या बात है, कहता आपने गोली चलाई। मैं तो एक बात बताइए, ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ मैं। एक बात बताइए आप कि एक आप जिनके खिलाफ FIR करवाते के लिए एप्लीकेशन देते हैं वो 3 बजे देते हैं या 4 बजे, और रात को फिर आप इतने मूर्ख हैं कि गोली चला देंगे? अगर मान लो कोई इतने मूर्ख हैं आप? सर मैं एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, मैं जिम्मेवार इंसान हूँ, मैं पागल हूँ मैं जो गोली तो कुल मिला के लाइव भारत के कैमरे के आगे हमने बेबाक बातचीत की और पहले पे बातचीत की, लेकिन सवाल वही, गोली चली या नहीं चली। अगर गोली चली है तो इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, और गोली नहीं चली है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, जो देर रात तक मीडिया को भी जगाते हैं, अपने षड्यंत्र में शामिल होने का न्योता भी देते हैं, झूठी अफवाह भी फैलाते हैं। तो हमने सच को सच दिखाने के लिए लाइव भारत दोनों पक्ष को हमने सामने रखते हैं, दोनों पक्षों की वीडियो सामने रखते हैं, जनता करे फैसला झूठा कौन। और गोली अगर चली तो क्या 7 लोगों ने सुनी? तो ये थे लाइव भारत की स्पेशल पेशकश, आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਵਲੀ ਢਾਬਿਆਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਹੋਇਆ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੋਠੇ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖਾਈ ਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ ਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬੋਰਡ ਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਬਾਕੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 23 ਲੰਘੀ ਆ ਤਰੀਕ, ਇਹ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ blame ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪੋ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਚਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ।